कोई ना हो वैसे, ये कल्चर कोई ना हो वैसे, और तेरे से तो अपने एप्पल ड्रॉप पे ही वो छोड़ेगा ये चीज वो जो स्टैंडिंग पर है ना उसको खड़े रहा कल्चर में डिप्रेशन स्टाइल है ही चाहिए ये था वो और वो जो बढ़िया था वो जाते आप वरना कुछ में सेपरेशन नहीं है ये और जो है वो खड़ा हुआ मैं डलवाऊंगा ये डिप्रेशन स्लाइड ये मैं नहीं दिया और समझ लीजिए Assalamualaikum. यदि कवर स्लिप ना हो Hello. अब इसे रिस्पॉन्स नहीं कर रोज ना हो दूसरा चलेगा रहा तो फ्री है ना स्लाइड हो जाता है स्लाइडों में लगेगी अच्छा ठीक हो गया आप लोग आगे से रिस्पांस नहीं करते कि आप अस्सलाम वालेकुम कहे तो अस्सलाम वालेकुम सर। सर पहले आवाज ही नहीं आई, मैंने शायद थोड़ा 1 मिनट बाद ज्वाइन किया था। मैं तो कब से कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पता नहीं सर, आवाज ही नहीं आई। चलो मान लेते हैं। और सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है चलिए
बेटा आपके जितने फेलोज है ना, अगर कोई आपका ग्रुप है तो उसमें लिंक शेयर कर दिया करें। ये मीटिंग का लिंक होता है ना। जी सर, कर दिया वैसे। हाँ, तो अब मुझे ये बताएं कि आपका कोई क्लास तो नहीं है इस टाइम में किसी बच्चे का? नहीं सर। नहीं है? नो सर, कोई क्लास नहीं है। किसी बच्चे ने मेल की थी सर क्लास है इस टाइम। सर हमारा तो किसी का भी नहीं है। इकरा एक लड़की है शायद, उनका नहीं मुझे पता। अच्छा ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट माइक्रोस्कोपी, एम आई राइट? यस सर। यस सर। माइक्रोस्कोपी में मैं जनरल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ इसका, कि आप लोगों ने कहा था कि माइक्रोस्कोपी क्या होती है, माइक्रोस्कोप को यूज करना। फिर आपने कहा था कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोप दैट एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू व्हिच वी विल विजुअलाइज small things that we cannot see with our naked eye. Then we have discussed about its types. You people have said that it's two basic types. One is light microscope and other one is your electron microscope. And further you have discussed about that on the base of light that we use as a visualizing agent based on their light wavelength. This classification is done. In this light microscope, we use visible light. ठीक है। In light microscope, we use visible light. That visible light is that light that's wavelength is in between 400 to 500 nanometer. And on the other hand, electron microscope use a source of light is an electron beam. Which have wavelength about 0.005 nanometer. And we also have discussed about as the wavelength increases, resolution power decreases. If we say that if this light microscope has larger wavelength, then its resolution power would be lower. On the other hand, we have discussed that electron microscope has minimum wavelength of its electron beam, so its resolution power is high. That's why you people say that we can obtain 2000 times greater image of an object that we observe under electron microscope. And then you people have discussed about its basic types of light microscope. You people said that it's had four main subtypes. Which one? First of all, that was bright field microscopy. And then you people said that it's a dark field microscopy. And after this, phase contrast microscopy. And fourth one was your fluorescence microscopy. You people said that bright field microscopy is that one microscope in which background is bright and dark field microscopy is that one
in which background is dark. And third type is phase contrast microscopy. In this, we use both background, dark and bright. Dark and bright background are used, and fluorescence microscopy. In this microscopy, we apply dyes. We apply dyes on our specimen, and in response to these dyes, our specimen produce fluorescence, and then we detect this fluorescence and obtain morphology of a specimen. Okay, these things we have discussed in our previous lecture, and then you people said that your electron microscopy also has two types. First one was your scanning electron microscopy. सर Okay. कैमरा और second one was your ठीक transmission electron microscopy. नजर नहीं आ रहा? यस सर अब आ रहा है? सर ये नीचे से भी नजर नहीं आ रहा। जी नीचे बता तो दिया बेटा, साथ साथ बता रहा हूँ। आप दोनों चीजें एक्टिव रखें ना, आंख और कान, तो चीजें भी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपके पास 2D में जाता है, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन में आपके पास 3D में जाता है। इससे आप क्या देखते हैं? एनाटॉमी देखते हैं, और क्या देखते हैं? इंट्रासेलुलर स्पीशीज, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स, और इससे आप क्या देखते हैं? जनरली मॉर्फोलॉजी ऑफ अ स्पेसिमेन। इसके बाद हमने इसका यूज देखा था कि हम अपनी इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास जर्नल कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी, उसको यूज कैसे करते हैं। ऐसा ही है, ये सारी चीजें ये हमने लास्ट जो इस प्रीवियस लेक्चर हुआ है उसमें डिस्कस किया था कि लास्ट वीक तो आपकी छुट्टी आ गई थी, लेकिन उससे जो पहली आपकी लैब थी उसमें हमने ये चीजें डिस्कस की थी। ऐसे है ना? यस सर। ये आप लोग कितने हैं? बस 9 बच्चे हैं? जी सर हम इतने ही हैं। नहीं नहीं, आप तो आई थिंक एटलीस्ट हैं कोई। एक सेकंड में आपको बताता हूँ आप कितने हैं। आई हैव अ लिस्ट ऑफ यू पीपल, 1 सेकंड। आपका A3 सेक्शन है ना? यस सर A3। Yes, sir. A3. ये आप लोग हैं रोल नंबर
सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली पावर कट ऑफ हो गई थी। हेलो। जी 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 सर, सर। आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि हमारे पास ये स्टूडेंट कौन कौन से हैं। ये A3 सेक्शन में है। आईडी इनकी F2019 69 से 87 तक। 69, ये 69 से ऑनवर्ड 87, मतलब ये हो गए 11, ये हो गए और 7 ये हो गए, मतलब आप लोग टोटल 18 है मेरे पास, इफ आई एम नॉट। ये आपके बाकी फेलोज से कह रहे हैं, आपके आप लोग जब कितने मीटिंग में 9 है ना? आईडी क्या जी आप सर। लोगों की? एस जरमान टू आपकी जीरो क्या वन ID है? नाइन वन इमरान आपकी आईडी क्या है? जरमान इमरान। ये जरमान किधर गया है? अच्छा वर्दा आप बता दें। शाहजरा आप बता दें बेटा, आईडी बताएं अपनी। S2019232001 क्या है? S2019232003 एंड पे क्या आता है बेटा? एंड पे 003 003 आता है। yes F2019 आपका, ये S2019 है। हम सारे स्टूडेंट्स S29 2019 के ही हैं। ये 9 स्टूडेंट्स जितने भी हैं, बस इकरा को निकाल के उसका शायद आपका फॉल क्या है या स्प्रिंग क्या है आपका एडमिशन? सर, हम स्प्रिंग के हैं। स्प्रिंग के स्प्रिंग इकरा नहीं है और 2019। बाकी हम सब स्प्रिंग के हैं। अच्छा, सर मैं भी स्प्रिंग की हूँ, लेकिन मेरा एडमिशन अभी हुआ, मेरा 2021 का है। अच्छा इधर आप लोग बैठे हैं स्प्रिंग के 990906030809112013 7 15 22 23, मतलब जो है ना आप सारे 19 वाले ये सारे मेरे पास है। आप लोग 19 वाले हैं स्प्रिंग वाले, यस यस सर। सर। और आप में से है कोई जो है स्कूल से फॉल 19 के? नो सर, यहाँ पे कोई भी फॉल्ट का नहीं है, सारे स्प्रिंग के ही हैं। कोई आप में है फॉल के स्टूडेंट है फॉल वाले? नहीं है? चले, बट आप लोग भी देख लें, ये आप लोग भी कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आप लोग 29 है और 10 लोग आप आए हुए हैं। बाकी आप लोग देख लें, आप लोग 29 है मेरे पास और 10 लोग अभी
अच्छा, आप आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपकी थ्योरी की क्लास होती है उसमें आप लोग कितने आते हैं? सर उसमें तो काफी ज्यादा है, 35 से भी अबव अबव है। हाँ वो मर्ज क्लास है। आप लोग फॉल के हैं ना, फॉल 2019 के? सर हम लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है वो स्प्रिंग 2019 के। आप लोग फॉल 19 के है ना, मैं ये कह स्प्रिंग रहा हूँ। सर स्प्रिंग स्प्रिंग 2019। स्प्रिंग अच्छा, आप लोग स्प्रिंग के हैं। मुझे यस ये सर। बताएं, जब आप थ्योरी की क्लास लेते हैं तो उसमें स्प्रिंग के कितने होते हैं? नहीं होते, आप ही होते हैं बस 9 स्टूडेंट। नो सर काफी ज्यादा होते हैं, उसमें फोर्थ सेमेस्टर वाले भी हैं, तो हमें इतना ज्यादा उनका नहीं पता कि वो स्प्रिंग के हैं कि फॉल के हैं। नहीं नहीं, जो जो आपके फेलो, आप बस यही हैं? यस सर हमारे बैच में तो यही स्टूडेंट्स हैं जी जिन्होंने ज्वाइन सर, किया हुआ है। हम नहीं। अच्छा हमारे ठीक है, बैच के इतने ही हैं। ठीक है, हम ये स्टार्ट करते हैं आज हमारा प्रैक्टिकल। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है बेसिकली डैट इज अबाउट मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया। कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी अगर हमने मूवमेंट चेक करनी हो कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसका हमारे पास प्रैक्टिकल है। डैट इज कॉल्ड योर हैंगिंग ड्रॉप एंड वेट माउंट मेथड। हैंगिंग ड्रॉप और वेट माउंट मेथड, ठीक है। वैसे जो आपके पास बैक्टीरिया होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। वो मूवमेंट कब शो करते हैं? व्हेन दे आर इन सर्च ऑफ फूड, जब वो सर्च ऑफ फूड में हो। और जब वो कब हो? व्हेन दे आर अंडर अटैक, दे आर अंडर अटैक। और व्हेन दे आर अंडर एंटीबायोटिक एक्शन, ठीक है। ये वो सर्कमस्टेंसेज हैं जब आपके बैक्टीरिया मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। इन सर्च ऑफ फूड का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया एक जगह पे क्या कर रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, बट क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या जो फूड रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और वो उनको अवेल होना स्टार्ट नहीं होते। देन वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही क्या व्हेन दे आर अंडर अटैक, के जब उन पर कोई प्रीडेटर क्या करें कि अटैक करना स्टार्ट कर दे। जब आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, यू पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका जो सेल है वो कौन सा हो? प्रोकैरियोटिक सेल हो, मतलब उनमें जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो उनके अंदर नहीं होती। उनका सेल यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है। यूनिफॉर्मली उनके अंदर कोई ऑर्गेनेली वगैरह नहीं होती है। जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्री रिज्यूम कर रहता है उनके सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। बट दे हैव मेम्ब्रेन्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, बट दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज। अच्छा, व्हेन दे आर अंडर अटैक, किन के अटैक के अंडर? आप बात करते हैं कि वो अंडर अटैक है कि उनके ऊपर जो है यूकैरियोटिक सेल्स वो अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जब यूकैरियोटिक ने इन पे अटैक करना है तो उन्होंने क्या करना है, अपने आप को सर्वाइव करने के वहां से मूव फॉरवर्ड करना है। अच्छा, जब वो क्या, वो अंडर एंटीबायोटिक के एक्शन पे, के अंडर बायोटिक के एक्शन पे है कि आपने क्या किया है कि उनके ऊपर एंटीबायोटिक अप्लाई की हुई है। जब वो एंटीबायोटिक एक्शन के अंडर हो गए देन वो मूवमेंट शो करेंगे। अच्छा, इनके अंदर मूवमेंट होती कितनी किस्म की है? इनके अंदर मूवमेंट हो सकती है, एक तो ब्राउनियन मूवमेंट होती है, ब्राउनियन मूवमेंट, और एक आपके पास ट्रू मूवमेंट होती है।
ब्राउनियल मूवमेंट क्या होती है कि उनका जो सेल है, मतलब ये आपके पास कोई बैक्टीरियल सेल है, जनरल सेल बनाया है, तो ब्राउनियल मूवमेंट क्या होगी, ये स्लाइड करेगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर, इसका कभी साइटोप्लाज्म इधर होगा तो इस साइड में मूव कर जाएगा, साइटोप्लाज्म इसका इस साइड में मूव करेगा तो इधर मूव कर जाएगा, साइटोप्लाज्म इस साइड में मूव करेगा तो ये इस साइड में मूव कर जाएगा एज अ होल। ये क्या होती है ब्राउनियल मूवमेंट। अच्छा, ट्रू मूवमेंट क्या होगी, इनके पास स्ट्रक्चर होता है, आपके पास जो बैक्टीरिया है दैट कंटेन अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला की मदद के थ्रू भी ये क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, जब इनके फ्लैजेला मूव कर रहे होते हैं, ऐसे वेव फॉर्म में मूव करते हैं, तो ये क्या करें, इनकी बॉडी आगे रिपल्शन करती है और आगे मूव फॉरवर्ड करती रहती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक एंड पे फ्लैजेला होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों एंड पे वन टफ ऑफ फ्लैजेला होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी होल बॉडी के राउंड अबाउट क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। मतलब ये आपके पास कोई बैक्टीरियल सेल है, इसकी एक साइड पे क्या है, बहुत सारे फ्लैजेला है एक एंड पर, और ये एक एंड दोनों एंड पर, बाकी छोटे छोटे क्या इनकी बॉडी पर पिलाई हैं। और कुछ बैक्टीरिया हैं, क्या होता है, उनके बॉडी के राउंड अबाउट कोई फ्लैजेला नहीं होता, जस्ट पिलाई होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके एक एंड पे क्या होता है, टफ और फ्लैजेला होते हैं। और कुछ बैक्टीरियल सेल होते हैं, क्या होता है, जिनके होल बॉडी के राउंड अबाउट क्या होते हैं, फ्लैजेला अबंडेंस में होते हैं। अच्छा, इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एयर ट्राइकस। एयर ट्राइकस कंडीशन में है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है पेरिट्राइकस कंडीशन। और ये मोनोट्राइकस, और ये आपके पास लोफोट्राइकस कंडीशन। ठीक है, जब बैक्टीरिया क्या हो, दोनों एंड पे हो, दोनों एंड पे एंड ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेला, जब ये रिपल्शन करते हैं वाटर के अंदर तो इनकी बॉडी क्या करती है, मूव करती है। और पेरिट्राइकस कौन से बैक्टीरिया हैं, इसमें आपके पास है इकोलाई आ जाती है, स्कर्शिया कोलाई, तो ये कौन से होते हैं, ये पेरिट्राइकस होते हैं। इनकी जब इनकी होल बॉडी के राउंड अबाउट ये एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इनका जो बॉडी है वो आगे मूव फॉरवर्ड करेगी। और ये मोनोट्राइकस कौन से होते हैं, जिनके पास एक एंड में क्या लगे होते हैं, फ्लैजेला लगे होते हैं, तो इन्हें आप क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस हैं। और एयर ट्राइकस कौन से होते हैं, जिनके बॉडी के राउंड अबाउट कोई फ्लैजेला नहीं होते, और इन्हीं फ्लैजेला की मदद के थ्रू क्या करते हैं, आपके जो बैक्टीरिया है वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने प्रैक्टिकली देखना हो कि हमारे पास जो गिवन सैंपल ऑफ बैक्टीरिया है कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास थ्री मेथड है। कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज योर हैंगिंग ड्रॉप मेथड, and second one is your wet mount method, or third one is your agar stab method. ठीक है, हम वन बाय वन हर एक को ईच ऑफ को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास एगर स्टैब मेथड है। जहां से बेटा आप लोगों को समझना है आप मुझे स्टॉप कर लिया करें। अच्छा, फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं एगर स्टैब मेथड।
एगर स्टैब्स, एगर स्टैब्स एक्चुअली क्या होते हैं? अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि एगर क्या होता है। एगर इज एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल। जेलेटिन मटेरियल होता है, इससे क्या बनती है? जेल फॉर्म बनती है। लेकिन जब आप एगर स्टैब की बात कर रहे हो तो हमारे पास जो इन विट्रो हमने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना होता है या आर्टिफिशियली हम कह लेते हैं, जब हम आर्टिफिशियली बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहें तो हम क्या बनाते हैं? एक ग्रोथ मीडिया बनाते हैं। ग्रोथ मीडिया क्या होता है कि जिसके अंदर आप ईच एंड एवरीथिंग अप्लाई करते हैं जिसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या कर सके? ग्रो कर सके। अच्छा, इसकी भी मजीद 3 टाइप्स होते हैं जो आपके पास ग्रोथ मीडिया होता है। यहाँ तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा, यहाँ या किस फॉर्म में होगा, या ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा, या ये होगा आपके पास लिक्विड फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या होती है? इनके अंदर प्रोटीन का होता है, पेप्टोन्स, उसके बाद NaCl होता है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है, और इसमें क्या होता है? इट कंटेन जेलेटिन मटेरियल, और इसमें होता है वाटर आप ऐड करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये जो आपका ग्रोथ मीडिया होता है ना, ये आपके पास मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका आप क्या बनाते हैं? सोल्यूशन एक्चुअली बनाते हैं। उसी सोल्यूशन से आपका क्या बनता है? सॉलिड मीडिया बनता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में ग्रोथ मीडिया होता है उसको आप एगर मीडिया भी कहते हैं, और जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है उसको आप एल्बी ब्रॉथ मीडिया कहते हैं। ठीक हो गया, और इसको आप सेमी सॉलिड फॉर्म में कहते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास सॉलिड मीडिया होता है इसमें एगर की जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज अबाउट 1.5 to 2%, और जो आपके पास सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है इसमें कंसंट्रेशन होती है 0.5 से 1.5% तक, और ये जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है इसमें आपके पास एगर की जो कंसंट्रेशन है, एगर मींस ये जो जेल है, ये एक्चुअली आप एगर लेते कहाँ से हैं? ये आपके पास आता है फ्रॉम एलजी। एक एलजी है उससे ये ऑब्टेन होता है, उससे ऑब्टेन करते हैं। इसका जो बॉइलिंग या बॉइलिंग कह लें या मेल्टिंग कह लें, जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो जेलेटिन टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में क्या बनती है? इसकी जेल बनती है, दैट इज फ्रॉम 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, इसके ये दरमियान होता है। अच्छा, अगर आपने सॉलिड मीडिया बनाना हो तो उसमें आपके पास एगर की कितनी कंसंट्रेशन होगी? 1.5 से 2% तक, और सेमी सॉलिड के अंदर कितनी होगी? 0.5 से 1.5% तक, और लिक्विड फॉर्म में कितनी होती है? 0.5% तक। अगर आपने लिक्विड मीडिया बनाना है तो उसमें आपने एगर कितना ऐड करना है? एगर वुड बी अबाउट 0.5% होगा, और इसमें एगर होगा 0.5 से 1.5% तक, और इसमें एगर कितना होगा? 1.5 से 2% तक। देन ये आपका कौन सा सॉलिड फॉर्म में मीडिया होगा, ये आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में मीडिया होगा, ये आपका लिक्विड मीडिया होगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं एगर स्टैब्स की। अच्छा, एगर स्टैब्स क्या होते हैं एक्चुअली? एगर स्टैब इज अ सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ ग्रोथ मीडिया। इसमें क्या होता है कि आपने जो है आपका मीडिया, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इसको आपने ऐसे क्या किया हुआ है? इसको आपने इन्वर्ट ऐसे रखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर आपने मीडिया बनाया हुआ कौन सा? सेमी सॉलिड मीडिया।
सेमी सॉलिड आपका मीडिया है। अच्छा, इसके अंदर अब आपने क्या लगानी है, स्टैब लगानी है। स्टैब एक्चुअली क्या होती है, कोई बताएगा स्टैब क्या होती है? आप लोग सुन रहे हैं मुझे? यस सर सुन रहे हैं, लेकिन स्टेप का आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक नीडल लाइक होती है स्टैब भी ना, नीडल लाइक होता है, उसको आप स्टैब कहते हैं। अच्छा, इसमें एगर स्टैब क्या होती है, एगर स्टैब इसमें एक्चुअली आपने लगाना होता है अपना कल्चर जो है वो इसके सेंटर में लगाना होता है, इस सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर। ऐसे आप क्या करते हैं कि ये आपका सेमी सॉलिड मीडिया है, आपने क्या किया कि एसेप्टिक कंडीशन के थ्रू, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, एसेप्टिक कंडीशन मतलब ये आपका टेबल है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं। इधर आपने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर आपके पास बर्नर है, ये इसके ऊपर से फ्लेम आ रहा है। तो इधर ये आपका क्या है, ये आपका सेमी सॉलिड मीडिया है, और इधर आपके पास क्या है, सॉलिड मीडिया है। आपको लास्ट टाइम मैंने ये सॉलिड मीडिया दिखाया था, आपने लास्ट टाइम देखा था सॉलिड मीडिया प्लेट्स के अंदर, नो नहीं देखा? सर। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास इसके अंदर मीडिया है इसका, ये जो आपको ब्राउनिश सा नजर आ रहा है, ये आपके पास कौन सा है, सॉलिड मीडिया होता है, जिसको आप एगर सॉलिड एगर मीडिया कहते हैं। ये आपके पास प्लेट है जिसके अंदर आपके पास कॉलोनीज होती हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये वाइट वाइट मैश आपको नजर आ रहा होगा, पीपल कैन सी इट, आई थिंक यू कैन नॉट सी इट। इस साइड से देखें, कुछ आ रहा, वाइट वाइट मैश नजर आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा, बट आपको ये आइडिया होगा ना ये सॉलिड मीडिया कैसे होता है। आपने सिंपली इस एगर स्टैब को कैसे आप इनोकुलेट करते हैं कि आपके पास ये सॉलिड मीडिया है। अच्छा, इधर से आपने ये मीडिया लेना कैसे है, आपके पास होता है इनोकुलेटिंग लूप होता है, दैट इज योर इनोकुलेटिंग लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करते हैं, ये आपके पास इनोकुलेटिंग लूप है, दिस वन इज योर इनोकुलेटिंग लूप। आप क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने इनोकुलेटिंग लूप को रेड आउट करते हैं। अच्छा, मैंने बात की थी एसेप्टिक कंडीशन की। एसेप्टिक कंडीशन हम इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि हम ये पॉसिबिलिटी रिड्यूस कर दें कि हम जो स्ट्रेन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अलावा हमारे पास कोई और स्ट्रेन आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो ये सारी चीजें एयर लैमिनर फ्लो होता है, उनके पास एयर लैमिनर फ्लो, उसके अंदर एक तो क्या होता है, यूवी लाइट होती है, और बाकी क्या होता है उसके अंदर बर्नर भी होता है, आपका इनोकुलेटिंग लूप होता है, आपके कल्चर होते हैं। वो भी क्या है, वो बेस्ट एसेप्टिक कंडीशन है। अगर आपने क्या करना हो, आप टेबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो टेबल है उसको आपने स्टेबलाइज करना है।
टेबल को आपने स्टेरलाइज कर लिया, कैसे? आपने इसके ऊपर स्प्रे किया, किसका? एथेनॉल का। तो उससे वो क्या हो गया, वो स्टेरलाइज हो गया, क्योंकि आपके पास जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इन एयर, इन वाटर, इन लाइट, everywhere they are present. To reduce their presence possibility, we apply aseptic environment. तो aseptic environment में आप क्या कर रहे हैं, ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये टेबल के ऊपर आपके पास ये बर्नर पड़ा हुआ है, आपका ये कल्चर मीडिया है सॉलिड, इसके अंदर आपके पास क्या आई है, ग्रोथ आई है। ग्रोथ आने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर ऐसे वाइट वाइट मैश बना होता है। वो मैश आपने क्या करना, यहाँ से उठा के पहले आपने क्या किया, अपने इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरलाइज किया। जब वो स्टेरलाइज हो जाए, रेड हॉट हो जाए, तो इसको आपने क्या करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। जब कूल डाउन हो जाए तो देन आपने यहाँ से एक कॉलोनी पिक करनी है। लेट्स सपोज आपने ये वाला जो व्हाइट मैश था ये उठाया और क्या किया, आपने इसको, इस जो आपका सेमी सॉलिड मीडिया है इसके सेंटर के अंदर आपने इसको डिप कर दिया। मतलब इसके अंदर आपने इसका क्या लगा दिया, अब इनोकुलम लगा दिया। ये इनोकुलम लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने अगेन इसको क्लोज कर दिया, इस बैटरी प्लेट को, बर्नर को ऑफ कर दिया और इसको रख दिया। देन आप इसको क्या कर देना है, इसका आपने माउथ क्लोज करना है। माउथ क्लोज करके इसको आपने क्या करना है, इंक्यूबेट कर देना है। इंक्यूबेशन पे आपने क्या टेम्परेचर देना है, 37 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना देना है, 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स आपके पास क्या आएगा, आफ्टर 24 आवर्स आपके पास क्या पॉसिबल रिजल्ट आएगा। आप देखेंगे कि ये वाला जो आपका मीडिया है इसके अंदर जो कॉलोनीज हैं वो फैल गई हैं। ये पूरे इसके अंदर ना फैल गई हैं, मतलब इसका कलर क्या हो जाता है, आपके पास रेडिश कलर हो जाता है। अगर रेड कलर पूरे इस मीडिया के अंदर फैल जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो जस्ट जो सैंपल था वो तो सेंटर में क्या किया, इनोकुलेट किया है, बट उसने क्या किया, उसने मूवमेंट शो की है, वो इधर भी फैल गया है, इस साइड पे भी फैल गया है, इस साइड पर भी फैल गया है, इधर भी स्प्रेड हो गया, इधर भी स्प्रेड हो गया और इधर भी स्प्रेड हो गया। मतलब क्या है कि उसने मूवमेंट शो की है। इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो गिवन स्ट्रेन थी इस बैटरी प्लेट के अंदर वो क्या है, वो मोटाइल है। समझ आई है कि एगर स्टैब कैसे लगाते हैं कल्चर। एगर स्टैब में एक्चुअली आपके पास सेमी सॉलिड फॉर्म में मीडिया होता है, उसके अंदर आप यहाँ तो नीडल से ये स्ट्रक्चर उठाते हैं, कोई आप नीडल ले लें, यहाँ पर आगे एक होता है नीडल, वो नीडल वाला होता है, उससे आप क्या, यहाँ से आपने कॉलोनी पिक की और उसको जस्ट सेंटर में आपने क्या कर दिया, इधर इसका इनोकुलम लगा दिया। इनोकुलम लगाने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपकी ये वाली जो ट्यूब है आफ्टर 24 आवर्स इंक्यूबेशन, तो क्या होगा, इसमें ग्रोथ आ गई है। अच्छा, ये तो इसका हो गया पॉजिटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा कि आप देखेंगे कि आपने एक और क्या किया है कि आपके पास था एक सेमी सॉलिड फॉर्म में मीडिया था, उसके अंदर भी आपने क्या किया, आपने किसी और बैटरी प्लेट से क्या की, कॉलोनी उठाई और उसका भी आपने कल्चर लगा दिया। जब आप कल्चर लगाएंगे तो आफ्टर 24 आवर आप देखेंगे कि जहां पर आपने कल्चर लगाया था बस यहाँ पर क्या, ये ग्रोथ आई है इधर ही, ठीक है, इस लाइन के साथ ही आई है। स्प्रेड नहीं किया उसने कि वो पूरी जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाए। तो इससे वो क्या शो कर रहा है कि ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये वाले नॉन मोटाइल हैं। नॉन मोटाइल कैसे है कि इनकी जो ग्रोथ थी वो एक जगह पर क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई है, बट इनकी ग्रोथ क्या है, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है कि वो इक्वली एवरी डायरेक्शन में क्या किया, वो स्प्रेड हो गई, वहां पर उसने अपनी कॉलोनीज बना दी हैं। अच्छा, ये क्या होता है, ये आपका एगर स्टैब मेथड होता है, जिससे आप क्या करते हैं कि आप बैक्टीरियल मूवमेंट्स चेक कर सकते हैं। इसकी समझ आई है आपको?
बताएं इसकी समझ आई या नहीं आई इसकी? एक तो आप लोग जब रिस्पांस नहीं करते, मेरा दिल करना मैं आप लोगों को मीटिंग से रिमूव कर दूं, सबको रिमूव कर दूंगा। सर चलें ना बताएं। अच्छा, ये था आपका एगर स्टैब मेथड। इसके बाद आपके पास आ जाता है हैंगिंग ड्रॉप और वेट माउंट मेथड। पहले हम देख लेते हैं वेट माउंट मेथड क्या होता है। वेट माउंट मेथड में आप लोग क्या करते हैं, वेट माउंट मेथड आप वैसे अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड फॉर मोर्टेलिटी, कि अगर आपने मॉर्फोलॉजी चेक करनी हो या आपने मोर्टेलिटी चेक करनी हो तो आप क्या करते हैं, आप लोग वेट माउंट मेथड अप्लाई करते हैं। अच्छा, वेट माउंट मेथड क्या है? वेट माउंट मेथड में आप लोग एक्चुअली जो आपका स्ट्रेन है, जो बैक्टीरियल कल्चर है, उसको आप माउंट करते हैं इन वेट फॉर्म में। कैसे करते हैं? आपके पास ये एसेप्टिक कंडीशन है, इसमें आपको जस्ट क्या क्या चाहिए होता है, आपको आपका कल्चर चाहिए जिसकी आप क्या देखना चाह रहे हैं, जिसमें आप मोर्टेलिटी चेक करना चाह रहे हैं। देन आपको स्लाइड चाहिए, इसके बाद आपको कवर स्लिप चाहिए, और देन आपको क्या चाहिए, आपको बर्नर चाहिए। ठीक है। अच्छा, और आपको चाहिए डिस्टिल वाटर। आपके पास बीकर है, इसमें आपके पास डिस्टिल वाटर है। अच्छा, वेट माउंट में आप क्या करते हैं कि आपके पास ये कॉलोनी है, लेट्स सपोज दिस वन इज योर these are colonies present on your growth media। मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये बेटा देखें, इसके अंदर आपको वाइट मैस नजर आ रहा होगा। ये जो एक्चुअली वाइट मैस है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास ग्रोथ होती है बैक्टीरिया के ऊपर, और ये जो नीचे आपको हार्ड मटेरियल नजर आ रहा है, ये एक्चुअली जेल है। ये जो अगर इसका साइड व्यू देखें तो इतनी थिक लेयर किसकी है आपके पास, एगर की होती है, जो आपने जेल बनाई हुई है। ये इसके अंदर सारी चीजें होती हैं जो पहले हमने डिस्कस की हैं। अच्छा, वेट मोड में आप लोग क्या करते हैं? वेट मोड में एक्चुअली आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल इन स्टेरिलाइज योर लूप को स्टेरिलाइज किया। देन आप क्या करेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ से लेंगे बाय योर इनोकुलेटिंग लूप, वो वाटर आपने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया कि अगेन आपने इनोकुलेटिंग लूप को स्टेरिलाइज किया। स्टेरिलाइज करने के बाद यहाँ से 1 कॉलोनी आपने पिक की। पिक करने के बाद
उसको इसके अंदर क्या कर दिया आपने, मिक्स कर दिया। इसका आपने क्या बना दिया, देन स्मेयर बना दिया। स्मेयर बनाने के बाद आपने इसकी जो कवर स्लिप है इसको आपने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। कवर स्लिप आपने प्लेस कर दी। अच्छा, अब अगर आप देखें तो आपने क्या किया है, आपने इस कल्चर को इसके ऊपर माउंट कर दिया है। किसके अंदर माउंट किया है, आपने वेट या आपने वाटर के अंदर इसको माउंट किया है। इसको क्या कहते हैं, वेट माउंट मेथड। वेट माउंट मेथड, ठीक हो गया। वेट माउंट मेथड कैसे कहते हैं ये आपको सारा अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये आपने स्लाइड पूरी आपकी स्लाइड प्रिपेयर हो गई है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके स्लाइड कवर स्लिप इसके ऊपर प्लेस करके देन आप इसकी क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी आप जब करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये आपकी स्लाइड है और इधर से आपको क्या हुआ, इमेज नजर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका ड्रॉप है उसके एज के ऊपर इधर वो आपको मूवमेंट शो नजर हो रही होगी। इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे कि आपके पास जो गिवन बैक्टीरियल स्ट्रेन है, ये वाली जो गिवन बैक्टीरिया है जो आपने ग्रो करवाए हुए आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर, वो क्या है, वो मोटाइल है। अच्छा, अगर मैं आपको एक और फ्रेश एग्जांपल दूं कि जो आपके पास पॉन्ड वाटर होता है, ये आपके पास क्या है, पॉन्ड वाटर है। पॉन्ड वाटर के अंदर क्या होता है कि बिलियंस ऑफ, तो वो तो पूरी बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। उसके अंदर आपके पास क्या क्या होता है, उसमें आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, देन आपके पास यूकैरियोट्स होते हैं, देन उसमें आपके पास एल्गी होती है, उसमें रोटीफिराज होते हैं। आपके पास जो पॉन्ड वाटर है उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बट आप क्या करेंगे, आपने पॉन्ड वाटर लिया, उसका 1 ड्रॉप आपने जस्ट इधर स्लाइड के ऊपर प्लेस किया। प्लेस करने के बाद उसके ऊपर आपने क्या रख दी, कवर स्लिप रख दी। कवर स्लिप रखने के बाद आपने उसकी क्या की, माइक्रोस्कोपी की। जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको क्या शो होगा कि उसके अंदर जो स्पेसिमन है वो बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं। उसको आपको बहुत क्लियर कट जो है मूवमेंट वो नजर आएगी। ये क्या होता है, ये आपके पास वेट माउंट मेथड होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड की, उसमें आप लोग क्या करते हैं, हैंगिंग ड्रॉप मेथड हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी आप लोग यूज करते हैं फॉर पर्पज ऑफ ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मोटेलिटी। कि आपने क्या चेक करनी है, मोटेलिटी चेक करनी है इन योर गिवन बैक्टीरियाज। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें आपके पास होती है डिप्रेशन स्लाइड होती हैं। डिप्रेशन स्लाइड का मतलब क्या है कि आपके पास स्लाइड है, ये स्लाइड है आपके पास, इसके सेंटर में क्या बना होता है, वेल बना होता है या ग्रूव बना होता है। इस ग्रूव के ऊपर आप क्या करते हैं, आपका जो आपकी जो होती है कवर स्लिप उसको आप रखते हैं, ये आपकी कवर स्लिप है। और आपकी कवर स्लिप के ऊपर आपका क्या होता है, एक ड्रॉप होता है जिसके अंदर आपका क्या है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है। मतलब जिसकी आप क्या देखना चाह रहे हैं, मूवमेंट चेक करना चाह रहे हैं, वो आप क्या करते हैं, वो इसके ऊपर रखते हैं और देन क्या करते हैं, इसको आप इस वेल के ऊपर प्लेस कर देते हैं। बट ये ऐसे नहीं होता, इसमें आप क्या करना पड़ता है, पहली बात तो ये है कि आपने ये कल्चर कहाँ से लेना है।
ये कल्चर आपके पास दो तरह से हो सकता है। या तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट इसको देंगे, ये आपके पास ब्रॉथ मीडिया है, और या फिर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एगर मीडिया है। अगर आपने ब्रॉथ से लेना हो कल्चर, देन आप क्या करते हैं कि आप ब्रॉथ में से सम पार्ट देते हैं एपन ड्रॉप ट्यूब के अंदर। ये आपके पास एपन ड्रॉप है, लेट्स सपोज आपने ये दे दिया 2 माइक्रोलीटर। 2 माइक्रोलीटर लेके इसको क्या करते हैं आप, इसको आप करते हैं सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखते हैं कि आपकी जो एपन ड्रॉप है इसके बॉटम पे आपके पास क्या आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है, वाइट मैस आ गया है। ये एक्चुअली जो वाइट मैस आता है वो क्या है, वो एक्चुअली आपके पास ग्रोथ है, या आपके पास जो बैक्टीरिया ने इस ब्रॉथ मीडिया के अंदर ग्रो किया हुआ है वो आपके पास ऑब्टेन हो जाता है। और देन जो आपके पास सुपर एंड होता है इसको आप क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, और इसको आप किसमें डिजोल्व कर देते हैं, अपने वाइट मैस को, इसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। इसको आप अच्छी तरह शेक करते हैं वाटर में, वाटर प्लस योर बैक्टीरियाज, कि आपका जो वो वाइट मैस है वो इसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया है। अब नाउ दिस इज रेडी फॉर दिस पर्पस। अगर आपने क्या करना हो कि आपके पास स्टार्टिंग जो आप ले रहे हैं वो है आपका सॉलिड मीडिया है, इसके ऊपर ऐसे इसके ऊपर क्या आई हुई है, कॉलोनीज आई हुई हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये काम करना है एसेप्टिक कंडीशन के अंदर। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब क्या है कि आपने पहले यूज करने से पहले इनोकुलेटिंग लूप है आपके पास, इसको यूज करने से पहले आपने इसको क्या करना है, इसको आपने स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज आप कैसे करेंगे, ये आपके पास बर्नर है, ठीक है, और देन क्या किया, स्टेप वाइज हम कर लेते हैं। ये आपके पास कवर स्लिप है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू प्लेस वैक्स, कि आपने वैक्स लेनी है, और वैक्स को आपने क्या करना है कि ये जो आपकी कवर स्लिप है इसके ईच कॉर्नर पे आपने इसको प्लेस कर देना है। वैक्स को आपने क्या किया कि ये वाली जो आपकी कवर स्लिप है इसके ईच कॉर्नर पे आपने इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद देन आपने क्या किया कि आपने 1 ड्रॉप ऑफ वाटर यहाँ पर अप्लाई किया। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनोकुलेटिंग लूप को आपने क्या किया, स्टेरिलाइज किया है। स्टेरिलाइज करने के बाद आपने यहाँ से एक कॉलोनी को पिक किया। कॉलोनी पिक करने के बाद क्या किया, आपने इसको इस ड्रॉप के अंदर डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व करने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपके पास क्या पड़ी हुई है, आपकी डिप्रेशन स्लाइड पड़ी हुई है। ये आपकी डिप्रेशन स्लाइड है। आपने क्या करना है कि आपने डिप्रेशन स्लाइड को उठाना है और इस कवर स्लिप के ऊपर ऐसे रखना है कि ये वाला जो इसका वेल है वो इस ड्रॉप के ऊपर आए। जब वो ड्रॉप के ऊपर आएगा तो आपने देन क्या कर देना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। पहले ये किस फॉर्म में है कि ये आपकी कवर स्लिप है, और ये इधर आपने क्या किया हुआ, आपने अपना ड्रॉप प्लेस किया हुआ जिसके अंदर आपका बैक्टीरियल स्ट्रेन है, और इसके ऊपर आपने क्या किया है, इसके ऊपर आपने अपनी जो डिप्रेशन स्लाइड है वो आपने ऐसे करके रखी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस डिप्रेशन स्लाइड को आप लोग अपवर्ड डाउन कर देंगे। मतलब क्या है कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको आप पलटा देंगे। तो पलटा देने से क्या होगा कि आपकी जो ये वाली स्लाइड है, मतलब जो आपकी कवर स्लिप है वो ऐसे इसके ऊपर आ जाएगी, और इधर क्या है, इसका ड्रॉप है। अब वो ड्रॉप क्या हो गया, अब वो ड्रॉप हैंग हो गया।
ड्रॉप आपका अब हैंग हो गया। हैंग किसके अंदर हुआ है? ये जो आपकी डिप्रेशन स्लाइड का वेल है, इसके ऊपर आपका जो ड्रॉप है वो हैंग हो गया। तो इसको आप क्या कहते हैं? हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो लेट्स सपोज ये आपकी क्या है, आप समझ लें कि ये जो है ना आपका ये कवर स्लिप है, इसके सेंटर पे आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ड्रॉप प्लेस कर दिया जिसके अंदर आपका मीडिया भी है और 1 ड्रॉप ऑफ वाटर भी है। अच्छा, अगर आप ये आपकी क्या है? डिप्रेशन स्लाइड है। डिप्रेशन स्लाइड का मतलब क्या है कि इसके सेंटर में क्या है? एक होल है। इस होल को मैं ऐसे इसके ऊपर प्लेस करूंगा कि जहाँ पर मेरा ड्रॉप है वो उस होल के ऊपर आ जाए, और देन मैं क्या करूँगा? ऐसे इन्वर्ट कर दूंगा। अब जो आपका ड्रॉप है उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कहाँ पर है? कि जहाँ पर आपका क्या बना हुआ है? ये वेल बना हुआ है। तो इस वेल के ऊपर जो आपका ड्रॉप है वो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं? हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं। तो ऐसा ही होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कब था कि ये आपके पास अगर क्या है, जो आपका इनिशियल मीडिया है वो क्या है? वो सॉलिड है, उसके अंदर आपकी ग्रोथ है। अगर क्या हो कि आपके पास ग्रोथ मीडिया है, उससे आप लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? उससे जस्ट आपने क्या करानी है? सस्पेंशन बनानी है। ये जो आपके पास एंड में बनी है, डेट इज योर सस्पेंशन। बैक्टीरियल सस्पेंशन। बैक्टीरियल सस्पेंशन आपने कैसे बनाई? आपने यहाँ से ब्रॉथ ली, ब्रॉथ को आपने सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें पैलेट आ गया। पैलेट को आपने क्या किया? पैलेट को आपने वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, और वो जो वाटर है उसमें आपकी क्या है? बैक्टीरिया है। इनकी आपने क्या करनी है? मूवमेंट चेक करनी है। तो ऐसे ही इसके बाद आपने क्या किया कि यही वाटर आपने लेना है, ड्रॉपर से लेने या आप इनोकुलेटिंग लूप से लेने। उसको अपनी कवर स्लिप के ऊपर रखें। कवर स्लिप अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर आप अपनी डिप्रेशन स्लाइड अप्लाई करें और देन उसको आप इन्वर्ट कर दें। इन दिस वे योर ड्रॉप वुड बी हैंग्ड। और इसका जो आपके पास पॉसिबल रिजल्ट है वो क्या होगा कि जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, लेट्स सपोज ये आपकी माइक्रोस्कोप है और ये आपको उसमें से इमेज नजर आ रहा है, तो जो ड्रॉप का एंड है, ये एजेस, इन एजेस पे आपको क्या शो होगी? आपको जो मूवमेंट है वो शो हो रही होगी। आप जब माइक्रोस्कोपी करेंगे तो आपको इधर जो बैक्टीरिया है वैसे स्लाइटली मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। क्लियर है भाई? बताएं Yes, sir. इसमें दोनों मेथड आपको क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर हमें तो ईमेल ही नहीं आती, और फर्स्ट लेक्चर से ईमेल नहीं आ रही, और आज भी ईमेल रिसीव नहीं हुई थी। मैंने आपको मेल की है और लिंक ग्रुप से मिला था, किसी बच्चे ने शेयर किया था, तो वहां से मैंने ज्वाइन किया है। तो सर वो प्रीवियस अब हमारी लैब्स का क्या होगा? और सर अभी भी नहीं हमें आई। सर ये काफी बच्चों का सर इशू है ये वाला। अच्छा, और किसका ये मसला है? सर हमारा भी यही इशू है, और सर मेरा तो क्लैश भी आ रहा है बीच में। मेरी इस टाइम क्लास भी होती है 2 बजे। सर ये मैंने आपको मेल की थी मोहम्मद उमर के नाम से तकरीबन 2 हफ्ते पहले, तो आपने कहा था मुझे सीसी कर दो तमाम बच्चे, तो मैंने आपको सीसी करके मेल की थी, लेकिन बाद में आपका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। या मैंने आपकी जो फेलोज है मैंने इनसे कहा कि अगर कोई स्टूडेंट जिनको मेल नहीं दी तो वो आप शेयर कर दें। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा आई थिंक सो। सर हमने तो ग्रुप में भी किया, लेकिन हमें किसी ने भी, तकरीबन 10-15 बच्चों का मसला है ये, 10-15 बच्चों को मेल नहीं जाती। अच्छा, आप लोग ऐसे करें ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, उसमें मुझे भी ऐड कर लें। ठीक है सर। हाँ, ये सारे बच्चे बना लें उसमें, बस मुझे भी ऐड कर दें। और बाकी जो जिन बच्चों को मेल नहीं आती वो मुझे ना कोई एक बच्चा सबके नाम लेके ना, तो वो मुझे आप शेयर कर दें, आइंदा मेल सबको आएगी। ठीक है सर।
भेजेगा आपको। अभी मैंने पूछा है कि इसमें से कुछ आप पूछ लें जो आपको Excuse me, समझ नहीं sir. आया, हैंगिंग ड्रॉप से या वेट मोड मेथड से या फिर आपका जो एग्री स्टैब मेथड है उससे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जी जी। सर वो मेरा क्लैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे? आपका क्लैश आ रहा है? कितने बच्चों का जी क्लैश सर। है? सर एक दो लड़कियां और है लेकिन उनको अभी तक लिंक नहीं मिला था तो उन्होंने ज्वाइन नहीं की हुई मीटिंग। अच्छा, आप लोग फॉल के हैं या स्प्रिंग के हैं ये मुझे बताएं। स्प्रिंग फॉल सर। के है। फॉल के हैं आप लोग? फॉल के हैं सर, फॉल के। अच्छा एक सेकंड, तभी मैं कहूँ ये मेरे सर पास फॉल एक के किसी लिस्ट है। बच्चे को नहीं आ रहा लिंक, सर फॉल के किसी बच्चे को भी लिंक नहीं आ रहा है। मेरे पास आपका यार जो पहली लैब हुई है ना उसमें जस्ट बच्चे आए थे 10 के 9, मैंने उनकी जो आईडी थी मेरे पास मैंने वहां से वो कॉपी किया था और देन आगे फॉरवर्ड की थी मेल। उसके बाद मैं इनसे पूछता रहा हूँ, आई थिंक इनके पास भी नहीं था आपका जो रिकॉर्ड है। चले सर कोई वो मैं बात नहीं, आपको मेरे मेल पास जो लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग है और ये जो अभी हुआ है तो इसकी भी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर हो जाएगी, डोंट वरी। वो मैं बाकी सर आपको मेल कर देता हूँ बच्चों के नाम, तो फिर वो आप कर दीजिएगा हाँ लिस्ट जो सेंड। बल्कि जिनको जो ऐड नहीं है वो मुझे पर्सनली खुद मेल कर दें, बस नहीं अपना सर नाम हम और ऐसे, आईडी लिख के। ओके सर ऐसे कर लेते हैं। आप ना ठीक है उमर सर। राने उमर को सर कर दें, वो रिकॉर्डिंग जितने भी लेक्चर हो गए हैं शेयर कर दें, हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं लेक्चर जो पीछे यार वो हमारी। ग्रुप बन जाएगा ना भाई मेरे, वो व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाएगा ना, तो वो सब उसमें होंगे खुद, तो सब शेयर कर देंगे। तो सर हम क्लैश वाले बच्चे क्या करें? क्लैश वाले बच्चे आप लोग मिस अलम से रब्ता करें या आप अपने एडवाइजर से रब्ता करें या मिस नायाब से करें। ओके सर, लेकिन हमने सर मिस अनम को की थी मेल तो उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिस नायाब को करें। ओके सर। अगर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा होता तो आप ना एक मेल है COD लाइफ साइंसेज, उसको दरमियान में CC कर दिया करें तो आपको रिस्पांस आ जाया करेगा। ओके सर। हाँ हाँ जानजेब आपका क्या इशू है? सर सेम इशू है सर, ये वाला ही। आज पहली लैब है सर हमारी। आपकी पहली लैब है आज? अच्छा वो सर बच्चे हैंड रेज करें जिनकी आज पहली लैब हो रही है। मेरी सर। बस हैंड रेज कर दें, मैं देख लूँ। उमर आयात अनम जावेद राफिया कंवर जानजेब कुछ और सर अभी भी कुछ बच्चियां जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको मतलब पता ही नहीं था, बाद में हमने लिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 2 बच्चे और भी होंगे, बाकी सबको आती है, बाकी सब की सेकंड लैब है। अच्छा ठीक है, अब वो बच्चे हैंड रेज करें जिनका क्लैश है, बाकी छोड़ दो। सर ये दो लैब की टाइमिंग क्या है सर? जिनका बेटा 2 बजे के टाइम के साथ क्लैश है वो बस हैंड रेज करें। बस अनम आपकी क्लैश है बेटा? सर मेरी एक और फ्रेंड भी है, वो आ रही है मीटिंग में, मैंने उसको कहा है तो वो ज्वाइन कर रही है, उसका भी क्लैश आ रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये जिन्होंने पहले कहा कि इनकी पहली लैब है तो इन्हें पहले कोई मेल वगैरह नहीं आई या किसी के थ्रू पता भी नहीं चला कि लैब भी होती है? यस सर, हमें कुछ नो भी सर, मतलब ना नहीं पता मेल चला। ना कोई राब्ता ही नहीं सर। सर कोई राब्ता नहीं। कोई आइडिया भी नहीं था कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब भी होती है साहब? सर आइडिया ये था तो पता था। सर मैंने आपको मेल की थी लेकिन आपने रिप्लाई भी किया था, आपने कहा कि आपको बेटा आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, लेकिन बाद में आपने फिर लिंक नहीं सेंड किया हमें।
अच्छा ठीक मैंने है। जितने बच्चे थे मैंने उनको सीसी भी किया था उस मेल में, आपने कहा था सबको मेंशन करो, तो फिर लेकिन आपने बाद में फिर भी उसका नई लिंक सेंड किया लैब आपने की। मेरे ख्याल आपने कुछ बच्चों का नेम सेंड किया था, ऐसे ही है? जी सर, मैंने सीसी में रखा था सब बच्चों को। और आपने ये भी कहा था कि हमें ये आइडिया भी नहीं है कि लैब कब होती है हमारी, और टाइम क्लैश भी कहा था मेरे ख्याल में। नहीं सर, हमारा तो वो तो टाइम क्लैश तो एक दो बच्चों का था, वो आपको बता दिया उन्होंने, तो उन्होंने बच्चों ने कहा था 2-3 ने कि आप सर को मेल कर दें कि हमारा लैब का क्लैश है। चलिए बहरहाल क्या नाम है आपका, बिलाल है? एक्सक्यूज मी सर, फिर वो हमारी अटेंडेंस का क्या होगा पिछले लैब्स का? सर हमारी अटेंडेंस का तो कोई इशू नहीं ना होगा, क्योंकि हमें पता भी नहीं था और डिपार्टमेंट वाले भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। पहले 2 लैब्स का मैं मैनेज कर दूंगा। जी सर, बस रिकॉर्डेड लेक्चर आप शेयर कर दीजिएगा, वो हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, आप शेयर हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने कब ज्वाइन की है ये जो है, इनकी पहली लैब है? सर आज की लैब भी हमने लेट ही ज्वाइन की है, क्योंकि लिंक किसी ने सेंड किया था लेट। कितने बजे ज्वाइन किया? 2:30 बजे या 2:45 बजे या 3 बजे? सर ये वो हमने 3:30-3:40 पे की है मेरे ख्याल में, और भाई 2 साढ़े 2:30 आप 2:40 हाँ जी 2:40 पे की। चलो ठीक है। अच्छा तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, फिर आपके सामने परफॉर्म भी करते हैं। सर जी बेटा। सर हमारा लैब क्लैश आ रहा था, मैंने आपको मेल भी की थी, लेकिन सर मैंने मजीद आगे मैम नायाब वगैरह को मेल की थी, लेकिन उनकी तरफ से स्टिल कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। रिस्पांस नहीं आ रहा तो आप सीओडी के दरमियान में सीसी कर लेंगे, रिस्पांस आ जाएगा। ओके सीओडी आपका पहला होगा। Motility determination in bacteria. Objective: determine whether the given culture of microorganism is motile or non-motile. There are mainly two methods by which motility determination can be done: hanging drop method and agar stabbing method. Hanging drop method.
Materials required for the experiment: depression slide, cover slip, petroleum jelly, bacterial culture, inoculation loop, Bunsen burner, sterile needle. Procedure: all the material should be inside the laminar airflow. Take a sterile needle. Apply petroleum jelly on 4 corners of the cover slip. Take the inoculation loop, flame it till red hot and allow to cool for some time. Now with the sterilized loop, take a loopful of bacterial culture. Place a small drop of the culture at the center of the cover slip. Take the depression slide and lower it, with the concavity facing down onto the cover slip so that the drop protrudes into the center of the concavity of the slide. Then press gently to form a seal. Now invert the depression slide. Observe the slide under low power objective and locate the edge of the drop. Then switch to high power objective to observe the motile organisms. Results: actively motile microorganisms were observed under high power objective and was fairly distinguishable from the microbes exhibiting Brownian movement. Agar stabbing method. Materials required for this experiment: sulfide indole motility medium, bacterial culture, inoculation needle, Bunsen burner. Procedure: all the material should be kept inside the laminar airflow. Take inoculation needle. Flame the inoculation needle till red hot and then allow to cool. Now take the bacterial culture and remove the cotton plug. Flame the mouth of tube. Insert the inoculating needle into the culture tube. Again flame the mouth of bacterial culture, close it and keep it back on the rack. Now take the sim medium, remove the cotton plug. Flame the mouth of the tube containing the medium. With the inoculation needle, stab the medium vertically. Care should be taken not to touch the bottom of the tube. Flame the mouth of the tube and close it. Flame the inoculation needle again and keep it back on the rack. Incubate the tubes at 37 degrees Celsius for 24 hours. After 24 hours, take out the tubes and possible results are: results: H2S positive motile. The result shows dispersed growth of organism outward from the stab line, indicating that the organism is actively motile. The black coloration in the medium is indicative of sulfur reduction and hydrogen sulfate production by the motile organism. H2S positive, non-motile. The result shows growth of organism confined to the stab line, indicating that the organism is non-motile. The black coloration in the medium along the line of inoculation is indicative of sulfur reduction and hydrogen sulfide production by the non-motile organism. H2S negative, motile. The result shows dispersed growth of organisms from the stab line, indicating that the organism is actively motile. The absence of black coloration in the medium is indicative of the inability of the organism to reduce sulfur. This demonstration is how to prepare a wet mount. The purpose of doing a wet mount is to check for the motility of a cell and also the size of a cell. Make sure your gloves and your goggles are on. I'll be demonstrating how to do a wet mount when the starting material is a liquid, and then when the starting material is coming from a colony on a Petri plate. Start by taking a slide from the box. You will need a cover slip. Cover slips are squares of either glass or plastic,
and they are separated by pieces of tissue paper. When the starting material is a liquid, take a drop of the material, put it in the center of the slide. Take your cover slip, hold it at a 45-degree angle, touching the slide, and gently drop it. When the starting material is a colony on a Petri plate, you will take a slide, and you're going to put a drop of deionized water in the center of the slide. Then, using aseptic technique, you'll be using your inoculating loop. You'll need to sterilize your inoculating loop by putting the loop into the flame of the Bunsen burner. Remove the lid from the plate. If there's an area on the plate where you can touch the loop to cool it beforehand, that would be a good idea. Touch the surface of a colony. Immediately put the lid back on the plate. Put the loop in the drop of water. Spread it around about the size of a dime. Sterilize the loop before you put it on the bench and turn off the Bunsen burner. Take a cover slip, hold it at a 45-degree angle, and gently drop it on the sample. अच्छा बच्चों, ये आपको आइडिया हो गया कैसे होता है प्रैक्टिकल? आपको आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। वैसे ये प्रैक्टिकल आपको तब समझ आएगा जब आप लोग अपने हाथों से खुद परफॉर्म करेंगे। ये भी आपने उधर वीडियो भी देखी, अभी मैं इधर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा वेट माउंट पर हैंगिंग ड्रॉप। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा। ये भी एक हकीकत है। चलें जी। Okay, first of all, we would perform wet mount method. Wet mount method में हमें एक्चुअली क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए वाटर चाहिए, हमें स्लाइड्स चाहिए, inoculating loop we have, and yes, here is our cover slips. ठीक है, पहले मैं आपके सामने एक वेट माउंट बनाऊंगा। हमारे पास ये जो हमने वो देखा सस्पेंशन, ये हमारे पास सस्पेंशन है जो हमने बनाई है फ्रॉम ब्रॉथ मीडिया। ये भी हमारे पास सस्पेंशन है और ये हमारे पास एक्सक्यूज मी सर, वो जो ऊपर आप करते हैं ना तो फिर दिखता नहीं है हमें जी। तो क्या कह रहे हैं सर? जब आपने सस्पेंशन ये दिखाया वो हमें दिखा नहीं जी। सर मैं कह रही हूँ जो कैमरा है ना उसमें वो सस्पेंशन वो शो नहीं हो रहा, दिखा नहीं। जब आपने दिखाया ना कि ये सस्पेंशन है तो वो ऊपर से ये देखो, ये सस्पेंशन बनाई हुई है, ये भी सस्पेंशन बनाई हुई है हमने, ठीक है। और ये आपके पास वैसे कॉलोनी है, बैक्टीरियल कॉलोनी जो एगर मीडिया के ऊपर है। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर हो गया। और ये आपके पास वैक्स है और
ये आपके पास डिप्रेशन स्लाइड है। If you people can see well. जी सर। ठीक, ये आपकी डिप्रेशन स्लाइड है। अगर आपको फील हो रहा हो तो इसमें एक वेल है। ठीक, मैं इसको बैक में थोड़ा रखता हूं। ये सेंटर में फील हो रहा है आपको? ये थोड़ा सा डिप्रेस है यहाँ से ना, अगर आप ऐसे देखें इसको, नजर आ रहा है? जी ये सर। इसमें डिप्रेशन होती है, जी। इसको डिप्रेशन स्लाइड कहते हैं। इससे आपने क्या करना है, हैंगिंग ड्रॉप करना है, और बाकी से आप लोग क्या करेंगे, वेट माउंट मेथड करेंगे। पहले हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो वर्क प्लेस है उसको हमने स्टेरिलाइज करना होता है। इसको हमने पहले लैंप से हमने पहले इसको यहाँ पर क्या किया, स्प्रे करवाया। तो ये हमारी, वैसे आपका ये लैमिनर फ्लो है, एक उधर उस सेकंड लैब में है, उधर वो ऑक्यूपाई वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम इसलिए ओपन एयर में ये काम कर रहे हैं, बट क्लोज टू द दिस फ्लेम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अपनी इनोकुलेटिंग लूप हमने स्टेरिलाइज करना है। ये देखिए, ये रेड आउट हो गया। आपके पास टू पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप मीडिया लेना चाह रहे हैं, ये सॉलिड मीडिया आप ये ले सकते हैं। अगर आप ये लिक्विड मीडिया से करना चाहें तो ये आपसे इससे भी कर सकते हैं। मैं दोनों से आपको करके दिखाता हूँ। ये ड्रॉप ऑफ वाटर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगा। ड्रॉप ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अब इधर से एक कॉलोनी मैं उठाऊंगा, if you feel your drop of the water is less, you can add more water on it. Now it is now spreaded, and only work is left is to place a cover slip. या तो कवर स्लिप ली, इसको आपने 45 के एंगल से रखना होता है। ये मैंने इसको रखा और ये प्लेस हो गई। नाउ योर वेट माउंट इज रेडी फॉर माइक्रोस्कोपी। ये तब था जब आपने क्या करना हो कि जब आपके पास जो मीडिया है एगर है वो सॉलिड हो। अगर आपने किधर से लिया है कि आपने लिया है ब्रॉथ मीडिया से, वो भी आप देख लें कैसे करना होता है। ये हमने स्लाइड ली,
Now you have to place one drop of water through it, like in this way. This is also ready for your microscopy. Now we have only just have to place our core slip on it. ये 45 के एंगल में मैंने रखा इसको, ऐसा ऐसा इसको प्लेस कर दिया। ये आपके पास टू वेट मोड मेथड, ये जो है आपके पास, ये जो आपकी स्लाइड है टू वेट मोड की आपके पास रेडी हो गई है। इनकी अब आपने क्या करनी है, माइक्रोस्कोपी करनी है। अच्छा, अब आते हैं हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड की तरफ। हैंगिंग ड्रॉप मेथड में एक्चुअली आपने क्या करना है कि आपने कवर स्लिप के ऊपर अपना जो स्पेसिमेन है उसको प्लेस करना है और देन उसकी क्या करनी है, आपने माइक्रोस्कोपी करनी है। ये हमारी कवर स्लिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई Vaseline on its side because we want to ये अब क्या कर दी मैंने, इसके 4 कॉर्नर पे मैंने वैसलीन को अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने अपना जो सैंपल है वो इसके ऊपर लोड करना है। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड इसमें भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप एगर प्लेट से लें अपना सैंपल या आप किससे लें, सस्पेंशन से लें। ठीक है, तो बेटर आइडिया जो आपको इजी लगे हम यही करते हैं, हम ये सस्पेंशन से ले लेते हैं। बस रेडी हो गया, इसे आपने क्या करना पड़ेगा, चेक कर लेना, इट्स बेयरेबल, now what we have to do, only hang our drop. For this purpose this is your depression slide, यस सक्सेसफुल। अब इसके अंदर हमारा जो ड्रॉप है
वो हैंग हो चुका है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि अपना जो सैंपल है वो मैंने कवर स्लिप के ऊपर प्लेस किया, दैन उसके ऊपर मैंने इनोकुलम लगाया। इनोकुलम लगाने के बाद उसको क्या किया, जो हमारी डिप्रेशन स्लाइड उसको इन्वर्टेड रखा, दैन उसको हमने सीधा कर दिया। ऐसे जो हमारा जो है ड्रॉप है डेट इज़ हैंग्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर माइक्रोस्कोपी। तो ये इस कैमरे से आपके माइक्रोस्कोपी आपको नज़र नहीं आएगी, जो पॉसिबल रिजल्ट है वो आपको वीडियो में शो कर दिए होंगे। That is all from my एक्सक्यूज मी side. सर, इस पे हम जी बेटा। सर वैसलिन क्यों अप्लाई करते हैं? जी जी। सर हमने उसके चारों कॉर्नर्स पे वैसलिन लगाई थी ना, तो वो उसका पर्पस क्या है वो एक दफा बता दें। उसका पर्पस यही है कि आपकी जो कवर स्लिप है वो उसके ऊपर अच्छी तरह फिक्स हो जाए। ठीक है, सर अदरवाइज जो कवर वो तो हम दरमियान में नहीं रखेंगे। नहीं, इस केस में ये है ना कि इसके दरमियान में वेल है तो फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन लेस हो जाएगा ना। उसको फ्रिक्शन लेस को कम करने के लिए आपने क्या किया, आपने वैसलीन अप्लाई किया। ओके सर। ओके, कोई और क्वेरी हो आप लोगों की? कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चाहे वो मेल पे बना लें या व्हाट्सएप पे बना लें, उसमें आप लोग कोऑर्डिनेट किया करें, उसमें मुझे भी ऐड कर लें। और बाकी जिन बच्चों को अटेंडेंस का इशू है वो पहले दो है मैं उनको लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ और उनकी अटेंडेंस की बात कर लूँ। ठीक है सर ग्रुप बना लिया मैंने सर, वो आपको मेल कर दिया ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे। उसमें जो फाल वाले बच्चे हैं वो तो मतलब ऐड हो गए हैं, जो स्प्रिंग वाले हैं तो उनको आप मेल के जरिए वो लिंक भेज दीजिएगा। नहीं, आप तो मुझे मेल कर देना जिन बच्चों को मेल नहीं आती है, आपके वो पास तो आईडी सर आ ठीक गई है है, मैं उनको अभी जी, ऐड कर। वो तो सर ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप का भी आपको ना वो ग्रुप बना के मैंने लिंक सेंड कर दिया आपको उसका भी। नहीं, आप लोग व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें तो मुझे भी ऐड कर दें। ये सारे बच्चे सुन रहे, व्हाट्सएप बना लें और ग्रुप बना लें, मुझे भी ऐड कर दें। जो मैं उसमें वही आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ग्रुप बना लिया है व्हाट्सएप का, और आपको मैंने ना उसका लिंक मेल के जरिए शेयर कर दिया है। ये जो लिंक है ना वो मैं आपको मेल एक्सक्यूज मी में सर, शेयर आप अपना नंबर शेयर कर दें। या फिर आप अपना नंबर शेयर कर दें ताकि आपको ऐड कर देना। वो जो मेल आईडी है उसके नीचे लिखा हुआ नंबर मेरा, वो व्हाट्सएप वाला ही है। सर उसमें यह है कि बाकी जो स्प्रिंग वाले बच्चे हैं ना उनका तो हमारे पास वो नंबर्स वगैरह जो स्प्रिंग वाले इसमें ऐड है। ये आप किसी से कहें वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लें। जो मैं क्या इधर कौन है लड़का, स्प्रिंग वाला कौन है फिर आप में? यस सर। बेटा आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लें और ग्रुप बना लें व्हाट्सएप में। जी सर ठीक है। बाकी अगर बाकी कोई इशू है तो बता दो मुझे। वैसे बेस्ट वे है आप लोग जो है वो मेल के थ्रू अप्रोच किया करें, वही बेटर रहता है। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ? चलिए हो गई बस, चलिए बस मेल करनी है साहब, सिर्फ साहब 2 मिनट। तो तू मेल करना है सर, ओके करा दिया है सर रिकॉर्डिंग का लिंक जूम में वो मेल में सेंड कर दीजिएगा। मैं बेटा उधर आपको जो है ना एसएमएस पे उधर आज अपडेट कर दूंगा एवरीथिंग, तो कोई इशू नहीं आपको। कोई बच्चा अभी ऐसा हो जो अभी मीटिंग कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ तो यही आपकी अटेंडेंस है।
ठीक है बेटा, that is all from my side. If you have any query, please ask. Otherwise, if you want to ask me later, approach me through mail. ठीक है बेटा, ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर, अल्लाह। हाँ जी। सर अपने अटेंडेंस मार्क कर रही है, मेरा इंटरनेट का इशू हुआ था थोड़ा सा, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। जी अटेंडेंस मैंने एक स्नैप दिया। क्या नाम है आपका? राफिया, राफिया कमल। ये वो मेरा मोबाइल कितने है? ठीक है बेटा।